We pray to God for God's guidance. वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर पिता से उस अगुवाई को मांगना चाहता हूँ। Our Heavenly Father, we thank you for this special time. Thank you for giving this opportunity. Now we are going to start sermon. Please give me wisdom and knowledge to preach the word of God. Please guide us and lead us. I come to you today and asking for your guidance, Lord. Please lead me and guide me through your Holy Spirit and give me clarity to someone. Then I can preach very well. I cannot do without your guidance. I pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise Lord to all my brothers and teachers. मैं आप सभी भाइयों को जय मसीह की। I hope you are doing well and as well as your family members. मैं आशा करता हूँ कि आपके घर परिवार और आपके जितने भी मेंबर्स हैं वह सब सही सलामत होंगे। Because God has took care our family members. क्योंकि मैं आशा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने उनको संभाल के रखा है। I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who created heaven and the earth, and who came here and who died our sin and who went to heaven and who will come. जो मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और जो फिर से हमें उस यासन को लेने आने वाले मसीह के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Today I want to share the short message. मैं आज का एक बहुत सीमित परमेश्वर का वचन को बताना चाहता हूँ। Today I took verses from the book of Ecclesiastes. आज का जो वचन है मैंने इक्लेसियास्टेस की बुक से लिया है। Please open the Bible, chapter 7 verses 8. लेविस्ता अध्याय 7 वचन 8। Somebody stand and read. आप में से कोई खड़े होकर पढ़िए। Better is the end of a thing than its beginning, and the patient in spirit is better than the poor in spirit. First, we will see about introduction about this book. सबसे पहले मैं इस पुस्तक का परिचय बताना चाहूँगा। And this book's meaning a teacher or preacher. The book of Ecclesiastes means meaning teacher and a preacher. इस बुक का मतलब है एक अध्यापक या एक अनुयायी जो हमें अगुवाई करता है। And this book author name is Solomon. इस बुक का जो लिखने वाला है उसका नाम सोलोमन है। According to tradition of Jews, the people and Christian people believe these things. मसीह परंपरा के अनुसार इस पुस्तक का लेखक सुलेमान को माना जाता है। And this book, what is the book of this book purpose? हम ये बताना चाहूँगे कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। And to show the life without God is meaningless. ये दिखाने की हमारे जीवन में परमेश्वर का जो वचन है तो हमारा जीवन कुछ मतलब का नहीं है। And this book written for everyone, but especially the people of Israel. ये पुस्तक सभी के लिए लिखा गया लेकिन खासकर उन इजरायली लोगों के लिए। As well as young generation. साथ ही साथ उन जवान पीढ़ी के लिए। And when we read the book of Ecclesiastes, we find the 12th chapter in the book of Ecclesiastes. जब हम इस पुस्तक को पढ़ते तो हम यहाँ पे 12 अध्याय को हम पा सकते हैं। And when we read the whole the book of Ecclesiastes, when we read whole book of Ecclesiastes, where we can understand human being cannot change our life. जब इस पुस्तक को हम पूरी पुस्तक को पढ़ते तो हमें ये समझ आता कि एक मनुष्य हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। All things is meaningless without God. सभी जो ये बातें हैं परमेश्वर के बिना एक मतलब की है, मतलब उसमें कुछ मतलब नहीं है। And the life full of struggle. और पूरा जीवन एक समस्या से भरा हुआ है। And richest people cannot bring the joy. और जो धनी लोग हैं वो एक खुशी नहीं ला सकते। Only God can bring God can give us a rejoice. केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में इस आनंद और जॉय को ला सकता है।
when we see the many people riches, जब हम उन बहुत सारे धनवान लोगों को देखते हैं, they are not enjoying, वे हम देखते कि वो खुश नहीं, वो आनंद में नहीं रहते, because they don't know about God. क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। That's why they cannot feel a joy. इसलिए वे उस खुशी को महसूस नहीं करते। But those who are living with God, they can feel a joy. बट लेकिन जो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की संगति में रहते हुए परमेश्वर की उस खुशी को महसूस करते हैं। Let's come to our book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 8. हम सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 7 में आएंगे। And you can see the today's topic name. आज के विषय का शीर्षक आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा The है end is better than its beginning. जो अंतिम है, जो अंत समय वो पहले से भी उत्तम है। And also here wrote in the book of Ecclesiastes, ये जो टाइटल है वह सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा गया है। better is the end of things than its beginning, and the passion in the spirit is better than proud in spirit. Chapter 7, verse 8. किसी काम के आरंभ करने से अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। And when we see in our life, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, every journey has a beginning and end. हमारे जीवन में जितनी भी यात्रा है उसका एक शुरुआत होता है और उसका एक अंत होता है। Someone starting some few job and when he started beginning he joyful. जब यदि कोई अपने उस बिजनेस को शुरू करता है तो सबसे पहले वो एक खुश होता है। And some people are starting painful. और कई लोग उस बड़े दुख के साथ शुरू करते हैं। But what says the book of Ecclesiastes? लेकिन एक सभोपदेशक का पुस्तक हमसे क्या कहता है? The better is the end of things and its beginning, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. किसी काम के करने के आरंभ से अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। And when I read these verses, जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, I am thinking about a lot about these verses. मैं इस वचनों के बारे में मैंने बहुत सोचा, but I cannot understand these verses. लेकिन मैं इन वचनों को अच्छे से समझ नहीं पाया। And I read the few chapters in the book of Ecclesiastes. इस पुस्तक का मैंने कुछ अध्यायों को पढ़ा, but I cannot understand. फिर भी मैं उनको नहीं समझा। But when who wrote this book, then I understood this book is written by Solomon. फिर मैंने ये जाना कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा है, तब मैंने जाना कि ये पुस्तक सोलोमन के द्वारा लिखा गया है। And he wrote with experience. तब मैंने ये जाना कि उसने इस पुस्तक को अपने अनुभव से लिखा। Then God gave to Solomon a lot of knowledge and wisdom. परमेश्वर ने सोलोमन को बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि दिया था। That's why he experienced. Then after that he wrote this book. इसलिए उसने उसके अनुभव से इस पुस्तक को लिखा। And that's why he said, इसलिए वो इस प्रकार से कहता है, the end is better than the beginning. इसलिए वो कहता है कि किसी का आरंभ से उत्तम अच्छा है। The patient greater than pride. वो धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। Then what is the meaning of the end is better? तो उसका मीनिंग क्या है, जो आरंभ से अच्छा है, उसका मतलब क्या है? I want to say one example. मैं उसका एक उदाहरण बताना चाहूँगा। When a farmer sows seeds in the land, जब एक किसान अपने जमीन में कुछ बीजों को बोता है,
then he facing many problems. तब वो कई समस्याओं का सामना करता है। When he when he go to when they go to the harvest, and he cut the with joyful. जब वह कटनी का समय आता है तब वे बहुत एक बड़ी आनंद के साथ उस कटनी को काटता है। And he is very happy. तब वह बहुत खुश होता है। The same thing here happened. वही सेम तरीका इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। And I want to more example from the Bible. मैं फिर एक उदाहरण बाइबल से बताना चाहूँगा। When we read the book of Job, जब हम आयुब की पुस्तक पढ़ते हैं, then Job has lost everything. तब आयुब ने सब कुछ खो चुका था। He lost wealth and health and family and servant and everything he lost. उसने अपने घर फैमिली को अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया, अपने बच्चों को भी खो दिया, सबको उसने खो चुका था। But he trust in God. लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। And he wait for the God's time. वो परमेश्वर की शक्ति के लिए वो रोया। And we will see the second example. और हम एक दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। Joseph betrayed his brothers. योसेफ ने उसने भाई को धोखा दिया And thrown into the pit. फिर उसने उसको गड्ढे में डाल दिया। And but after that we will see. उसके बाद हम फिर देखते हैं he was facing many problems. वो बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। But after that God, because he trust in God, इसके बाद उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा इसलिए, and God rest to up him, और फिर परमेश्वर ने उसको उठाया, and he become a prime minister of Egypt. वो फिर एक इजराइल का एक मिस्र का एक अधिकारी बना। And all about this thing we can read the Genesis chapter 50 verse 20. ये सभी बातें जो मैंने अभी कही, ये सभी बातें उत्पत्ति अध्याय 15 का 20 में हम पढ़ सकते हैं। And I want to say one example or more. मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। When Jesus Christ born into the earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, he was facing many problems. यीशु मसीह कई समस्याओं का सामना कर रहा था। And the many people he dying on the cross. वो क्रूस पर मरा, and he died. वो मर गया। And after that we will see. उसके बाद हम देखते हैं He rose again. और फिर जी उठा। And he served in the world. उसने इस दुनिया में सेवा किया। And he went into the heaven. और फिर स्वर्ग में चला गया। And he will come. और फिर दोबारा आएगा। After that we will see when Jesus died, and we got happiness. उसके बाद हम देखते हैं कि उसके मरने के बाद और उसके जीवने के बाद फिर हमको ये समझ आता है कि उसके दौरान खुशी मिलती है, हमें खुशी मिलती है। And do you know what is the passion? आपको पता है धैर्य क्या है? Passion means waiting on God without giving up. परमेश्वर पर हमें बिना कुछ हार मानते हुए परमेश्वर पर विश्वास करना धैर्यवान है। It means we are serving in the world without no one can give money. इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में हमें सेवा करना है। यदि हमें कोई हमारी मदद करे बिना या करे या ना करे, हमें परमेश्वर की उस सेवा को करना है। Then we can see the passion. तब हम इस मीनिंग का, इस वर्ड्स का हम मीनिंग हमें पता चलता है। And do you know what is the pride? आपको पता है क्या एक गर्व क्या है? Pride says I want it now. I want to do now. प्राइड ये कहता है कि घमंड ये कहता है कि मैं अभी करना चाहता हूँ। And they cannot wait for God's time. वो परमेश्वर के उस समय को इंतजार नहीं कर सकते। When we read the life of Saul, जब हम शाऊल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे,
He didn't wait for Samuel. वहाँ साउल सामुएल के लिए इंतजार नहीं किया। He offered the sacrifice himself, उसने खुद अपना बलिदान को चढ़ाया, and he destroyed himself. उसने अपने आप को खत्म किया, And God removed his throne. God removed his throne. परमेश्वर ने उसके उस स्थान से उसको हटा दिया। And this is then we can pride means they cannot wait for God's time. घमंड का मतलब ये है कि वह परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार नहीं करते। But we will see the life of Solomon. और हम सुलेमान के जीवन के बारे में देखेंगे। When we read the book of First Kings, जब हम पहला राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं, First Kings chapter 1 verse 46. पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 1:14। Solomon sit on the loyal throne because of God. 46. Chapter 1 verse 46. Solomon sits on the loyal throne because of God. वो मतलब सोलोमन उस राजगद्दी पे बैठा, इसका कारण था परमेश्वर। And after that we will see the chapter 3 verse 3. उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 3:3 में Solomon loves to God so much. यहाँ पे इस वचन से हमें ये समझ आता है कि सोलोमन ने परमेश्वर को बहुत प्यार किया, more than worldly things. उसने इस दुनिया की हर एक बातों से भी परमेश्वर को ज्यादा प्रीति And रखा। after that we will see the First King chapter 3 verse 4. उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर अध्याय 3:4 में He burnt offering thousand that altar. उसने कई वेदियों को परमेश्वर को चढ़ाया। And at that time it is not easy. उस समय ये काम करना कोई आसान नहीं था। It's very difficult for that time. उस समय के लिए ये काम करना बहुत ही एक कठिन काम था। And he burnt offering 1,000. उसने कई होम बलियों को 1000 की होम बलियों को उसने चढ़ाया। And after that we will see the chapter 1 verse 1, chapter 6 1 verse. उसके बाद हम देखते हैं 6:1 में Solomon began to build the house of the Lord. और फिर इसमें ये समझ आता है कि सोलोमन उस परमेश्वर के मंदिर को बनाने का शुरू किया। And after that we will see Solomon built the house of the Lord and finished. उसके बाद देखते हैं कि उसने उस मंदिर को बनाना समाप्त हुआ। And after that we will see the chapter 10 verses 21. उसके बाद हम देखते हैं 10:21 में Solomon drinking vessel were of gold and silver. Vessel. Solomon drinking vessels of gold and silver. इसमें हम देखते हैं कि सुलेमान ने उस खाने पीने बर्तन और सोने चांदी के सब बर्तन उसने उस मंदिर में लाए। And there was a house of named Lebanon. वहाँ पे एक घर का नाम था जिसका लेबेलोन करके जाना जाता था। And that house everything of gold. उस जो घर में था सब कुछ चांदी का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था। Then pure gold. वो कोई ऐसा आजकल वाला फालतू सोना नहीं, लेकिन एक सच्चे सोने से बना था। And that time no one can take gold and silver. उस समय की बात है कि उस समय एक मामूली व्यक्ति सोने को खरीद नहीं सकता है। That time no one take care the gold and silver. उस समय सोने चांदी की कोई रखवाली कर नहीं सकता है। That time gold and silver common. उस समय सोने और चांदी बहुत एक मामूली सी बात थी। Like we will see the like a storm. जब आज के ज़माने में हम देख सकते जिस प्रकार से इस दुनिया में इस जमीन पे जिस प्रकार से पत्थर पड़े थे उसी प्रकार। And after that we will see the First King chapter 10 verse 18, 28. उसके बाद हम देखते हैं First King chapter 10 verse 28. उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 10:21। He had a lot of horses. उसके बाद बहुत सारे घोड़े थे। And there are many people came to bringing the horses.
और कई लोग उसके पास फिर भी घोड़े लाते थे। There are many people came to Solomon for bringing the horses. और कई लोग थे जो सुलेमान के पास आए और कई घोड़े को भी लाए। Means they came to Solomon for bringing horses because he has a lot of horses. वो कई लोग उसके पास आए क्योंकि उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, क्योंकि वो सुलेमान के पास जो लोग आए थे वे घोड़े के लिए आए थे। After that we will see the first King chapter 11 verse 3. उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 11 का। Solomon had 700 wives and concubines. उसके बाद अध्याय 11 का 3 में ये बताता है कि उसके पास 700 रानियां और 300 रखेलियां थी। And after that when he read about the after that he was spending time with wives. इसके बाद हमें यह समझ आता है कि वह बहुत सारा समय उसकी पत्नियों के साथ व्यतीत करने लगा। And he is worshiping idols with his wives. और उनकी पत्नियों के साथ वह उस मूर्तियों को पूजने लगा। But he forgot God's blessing. वो उस परमेश्वर की आशीष को भूल गया था। And when we read the first King chapter 11 verse 4, जब हम फर्स्ट राज चैप्टर 11 उसका 4 पढ़ते हैं, Solomon's heart is not perfect before the Lord. यहाँ पे ये समझ आता है कि सुलेमान का हृदय परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं था। What is the evil things before the Lord he did? जो कुछ वस्तुएं जो परमेश्वर के सामने घिनौनी थी वो उसने किया। And he made a statues and he took high places. उसने कई ऐसे मूर्तियों को और कोई ऐसे उस बड़े-बड़े स्थानों को बनाए जो बनाने उचित नहीं थे। And he is worshiping idols. वो फिर वो उन मूर्तियों को पूजने लगा। And after that we will see the first King chapter 11 verse 14. उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 11 का 14 में। Then Solomon's life downfall day by day. उसके बाद हम ये समझ आता है कि उसका जीवन दिन प्रतिदिन उसका जीवन घटते गया। And he is not perfect before the Lord. वो परमेश्वर के सामने एक अच्छा व्यक्ति नहीं रहा। And God made stand Hadad before the Solomon. Hadad means one enemy's name Hadad. He stand against the Solomon. There is a enemy who नहीं एक जो उसका एक शत्रु था वो उसके सामने आया, उसका नाम है अदाद। Hadad, and Hadad was from Edom. जो इसका जो शत्रु था उसका वो अदाद नामक देश से था। After that we will see the chapter 11 verse 26. उसके बाद हम अध्याय 11 का 26 में देखते हैं। Jeroboam stand against Solomon. उसके बाद हम देखते हैं कि जो यरोबाम नामक एक व्यक्ति सोलोमन के विरुद्ध हो गया। Jeroboam was a servant of the Solomon. वो जो यरोबाम थे वो उसका एक कर्मचारी था। Why they are against Solomon? ये सब लोग क्यों सोलोमन के विरुद्ध हो गए? Because of sin of Solomon. क्योंकि वह सब उसका कारण है उसके पाप। He is not perfect before the Lord. वो परमेश्वर के सामने एक अच्छा व्यक्ति नहीं And है। what happened after that? He sinned against God. वो जब उसने पाप किया उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ? And he turned heart to idols. उसका मन उसने उन मूर्तियों की ओर लगाया। He disobeyed the word of God. वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। He promoted the idol worship. वो उस आराधना को पूजने लगा। And he ignored his proverbs. वो अपने उन वचनों को वो इनकार करने लगा। Enemies raised against Solomon. और कई शत्रु उसके विरुद्ध में उठे। And he ended in sin. वो पाप में प्रवेश कर गया। And what happened after that? उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ? He lost 10 tribes. वो 10 गोत्र उसने खो दिए। He lost the power of God.
वह परमेश्वर की शक्ति को वो खो दिया। He lost a divine protection. वो परमेश्वर की उस महान शक्ति जो उसको संभालती थी, उसने उसको खो दिया। He lost a peace of God. वह परमेश्वर के उन याजकों को उसने खो दिया। He lost a spiritual faithfulness. वो एक आत्मिक विश्वास उसने खो दिया। He lost the covenant of blessings. वो वाचा का आशीष उसने खो दिया। He lost God's blessings. वो परमेश्वर की आशीषों को उसने खो दिया। He lost God's presence. वो परमेश्वर का उस उपस्थिति को उसने खो दी। He lost his throne. वो अपने खुद उस सिंहासन को भी खो दिया उसने। And he lost everything. वो सब कुछ खो चुका। And after that, what happened? उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ? And after that, we will see his life. उसके बाद उसके जीवन से हम देखेंगे His life is ended with sin. उसका जीवन पूरा पाप से भर गया। And Solomon's life started good. Solomon's life started good. And Solomon started life good. और सुलेमान का जीवन फिर अच्छा होने लगा। When he began the missionary and he began the serve with God, that time he is perfect before the Lord. जब वह परमेश्वर की सेवा को कर रहा था, तब वह उसका जीवन परमेश्वर के सामने एक बहुत अच्छा जीवन था। But he sinned against God. लेकिन उसके बाद जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, then he has lost everything. उसके बाद वह सब कुछ खो चुका। And he died. उसके बाद वह मर गया। And when we see the life of Paul, जब हम शाऊल के जीवन के बारे में देखते हैं, when before Paul came to Christ, जब शाऊल परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले, he was a Pharisee. वो एक फारिसी व्यक्ति था। And he started in the following Jewish law. वो उस यहूदी लोगों की परंपराओं को मानने वाला एक व्यक्ति था। He trained under the Gamaliel. He trained under the Gamaliel. वो एक गमलीएल नामक व्यक्ति के नीचे लेके वो शिक्षा पाया था। And he hated the Christian people. वो कई मसीह लोगों को मारता और सताता था। When we read the book of Act chapter 7 verse 58 to 8:1 verses. जब हम प्रेरितों का काम अध्याय 7 में पढ़ते हैं तब that time he allowed the stoning of Stephanus. तब वहाँ पे ये समझ आता कि जब स्टीफनुस का हत्या किया जा रहा था, तब उसने परमिशन दिया था कि उसको पत्थर से मारा जाए। Because he has authority. क्योंकि उसके पास एक अधिकार था। And after that he arrested the Christian people. उसके बाद वह कई मसीह लोगों को गिरफ्तार करता है। And he thought I was serving God by attacking. उसके बाद ये उसके मन में ये सोच रहा था कि मैं क्रिश्चियन लोगों को मतलब मसीह लोगों को मैं गिरफ्तार करने के बाद ये सोच रहा था कि मैं मसीह की मतलब परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूँ। But after Paul came into in Christ, जब उसके बाद पौलुस मसीह में आता है, and he was blinded for 3 days. वो 3 दिन तक वह अंधा बन गया। And Ananias came to him and pray for these things. उसके बाद एक हनन्याह नामक एक प्रभु का दास उसके लिए प्रार्थना करता है। And Paul's eyes are opened. उसके बाद पौलुस की आंखें खुल जाती। And he baptized. उसके बाद उसे बपतिस्मा दिया जाता है। And he filled with Holy Spirit. उसके बाद यह देख सकते हो पवित्र आत्मा से भरा जाता है। And after that he began preaching the gospel. उसके बाद हम देखते हैं कि वह सुसमाचार को सुनाने लगा in the synagogue. आराधनालय में। Then there are many people amazed because he is a Paul or not. कई लोग आश्चर्यचकित हुए क्योंकि ये पौलुस है या कोई दूसरा है। Because he is a persecuted Christian people. क्योंकि पहले एक जो पौलुस था वह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। Then we will compare the before Christ after Christ.
उसके बाद वह उसको तुलना करने लगे कि ये पहले कैसा था और बाद में कैसा है। And he was a Pharisee, वो एक फारिसी व्यक्ति था। but after that he came to Christ. जब उसके बाद वह मसीह में आने के बाद He became a disciple of Jesus Christ. उसके बाद वह मसीह का चेला बना। And he persecuted Christian people, उसने कई मसीह लोगों को सताया। but he became a prisoner and he preaching word of God. वो उसके बाद ऐसा उसको जेल में डाला गया और वहाँ भी उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया। And he believing is he is a believing law of Jews. वह उस यहूदी परंपरा को विश्वास करने वाला व्यक्ति But था। after that we will see he said I saved by God. उसके बाद हम देख सकते थे उसने कहा कि मैं परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूँ। And he first time he didn't love the Christian people. पहले उसने उन मसीह लोगों को उसने प्यार नहीं किया। But after he came in Christ, लेकिन मसीह में आने के बाद he loved everyone. उसके बाद उसने सभी को प्यार किया। And after that he cursed the Christian people. उसके बाद उसने cursed. उसके बाद उसने कई मसीह श्राप दिया। Curse. उसने कई लोगों को श्राप दिया। But after that he loved so much the Christian people. लेकिन उसके बाद उसने कई लोगों को प्यार किया। And I want to finish here. मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। Just I compare the life of Solomon and Paul. मैं सोलोमन और साउल का जो जीवन को मैं तुलना करना चाहूँगा। Just the first time Solomon started with life with God. जब पहले जो सोलोमन का जीवन परमेश्वर के साथ जब वो शुरू करता है। And Paul started with law of Jews. लेकिन जो शाऊल है वह उस मसीह यहूदी परंपरा के अनुसार शुरू करता है। And he persecuted the Christian people. वो पौलुस ने कई मसीह लोगों को सताया। And Solomon became a king of Israel. लेकिन जो सोलोमन है वह एक इज़राइल का राजा बना। But Paul came in Christ. लेकिन जब पौलुस मसीह में आया and he blinded. वो अंधा बन गया। And after Solomon sinned against God. लेकिन जब सोलोमन ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। But Paul started with life with Jesus Christ. लेकिन पौलुस ने अपने जीवन को मसीह के साथ शुरू किया। Solomon made a statues. सोलोमन ने उस मूर्तियों को बनाया। And he was worshipping. लेकिन फिर उस मूर्तियों को आराधना कर रहा था। And Paul was worshipping to Jesus Christ. लेकिन जो पौलुस है वह परमेश्वर पिता को आराधना कर रहा था। And Solomon made high places for idols. सोलोमन ने कई ऐसे ऊंचे स्थान जो बनाए। And after that Paul planted the many churches. लेकिन पौलुस ने कई सारे कलीसिया को स्थापित किया। And Solomon was facing a problems because of his sin. जब हम सोलोमन के जीवन से देखते हैं तो वो कई समस्या का सामना करता क्योंकि उसने पाप किया था। And also Paul was facing many problems for Christ. उसी समय पौलुस भी कई समस्या का सामना कर रहा था। Solomon was living with idols. जो सोलोमन है वो मूर्तियों से आराधना करके जी रहा था। And he was worshipping to God. जब he was worshipping idols. जब उन मूर्तियों को आराधना कर रहा था। And after when we see the life of Paul, जब हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं। And Paul was preaching word of God. जब पौलुस परमेश्वर के वचनों को शेयर कर रहा था। When we compare the life of Paul and life of Solomon, जब हम पौलुस और सोलोमन के जीवन को तुलना करते हैं, what we understand? हम क्या समझते हैं? Then we will come to book of Ecclesiastes chapter 7 verse 8. हम फिर से सबोपदेशक की किताब अध्याय 7 का 8 में आएंगे। Then we can understand. That's why he wrote, better is the end of things than its beginning things. And the patient spirit is better than the proud in spirit. किसी काम के आरंभ
से उसका अंत अच्छा है। What we learn from this both of this story? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? And we should not judge the anyone. हमें We should not judge the anyone. हमें इस दुनिया में जैसे लोग हैं ऐसे नहीं होना है। And we cannot say that he will go to the into the heaven. हम ये नहीं कह सकते कि उसको नहीं कह सकते कि ये स्वर्ग में जाएगा या नहीं। Well, just I want to say one example. मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। Like Deepak is worshipping every day, and he is lot of worshipping to God. एक उदाहरण के बताया कि हमारे दीपक भैया डेली परमेश्वर से आराधना करते हैं और बहुत करते हैं। But we cannot say that he will go to the heaven. लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये स्वर्ग में जाएगा या नहीं। But when we see the life of Solomon, जब हम सोलोमन के जीवन से देखते हैं, he is doing everything for the Lord. वो सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा था। And he burnt offering the high places. उन्हें कई होम बलियों को चढ़ाया। But after that, his life end उसके बाद हम देख सकते हैं उसका जीवन खत्म हो गया with sin. उसका जीवन हम उसके बाद देखते हैं उसका जीवन पाप से खत्म हो गया। When we will see the life of Paul, जब हम शाऊल के जीवन से देखते हैं, he is not perfect before Christ. वो परमेश्वर के सामने वह पहले अच्छा नहीं था। But after and he was persecuting the people of Christian. वो कई मसीह लोगों को सता रहा था। And he is become like enemies for Christian. वो मसीह के लिए एक शत्रु सा बन गया था। But after that Jesus Christ sent his life. उसके बाद मसीह ने उसका जीवन को बदला। And we should not judge the other people. He will go to the heaven. हम ये उसका न्याय नहीं कर सकते कि लोग ये स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। A criminal can become a prisoner. A criminal can become a prisoner. एक जो गुनाह करने वाला है भी एक प्रचारक बन सकता है। A failure can become a testimony. मतलब गवाही बना सकता है। failure जो फेलियर है वो जो अपनी गवाही को उत्पन्न कर सकता है। A broken life can be rebuilt by God. जो एक टूटा हुआ जीवन वो फिर दोबारा से बना सकता है। And that's why here I made a topic. इसलिए मैंने इस शीर्षक का नाम इस प्रकार से बनाया। The end is better than its beginning. जो अंत है उससे उत्तम है उसका, जो शुरुआत है उससे उसका अंत है उसका अंत अच्छा है। And you should put in your mind that God sees our starting life of starting and beginning. हमें ये starting life and beginning. God sees our beginning and end. हमारे परमेश्वर हमारे शुरुआत और अंत को देखता है। और when there are many people who are worshipping our churches and among us. यहाँ पे कई लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना और महिमा को करते हैं। But we should not say he will go to heaven. हम ये नहीं कह सकते कि वे स्वर्ग में जाएंगे। What happen after coming days we don't know. हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। That's why we don't judge anyone. इसलिए हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। And we how we started journey with God. हमने किस प्रकार से हमारी यात्रा को परमेश्वर के साथ शुरू किया। And we should finish with Christ. जिस प्रकार से हमने हमारी जर्नी को मसीह के साथ शुरू किया उसी प्रकार से हमें उस जर्नी को मसीह के साथ समापन करना। If we didn't end a good life with Christ, यदि हमारे जीवन मसीह के साथ हमने अच्छे से समापन नहीं किया, that's why we will destroy our life. तब हमारे जीवन को हम खत्म कर देंगे।
and you don't forget this thing. तो इन बातों को आप ना भूलें। I want to finish here. मैं इस वचन को यहाँ समापन करना चाहूँगा। I request to VP pray for these things. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते पिता, आपके चरणों में आते पिता, आपसे दुहाई देते प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो किस बातें हमने सुना है पिता परमेश्वर, सीखा है पिता, उस पर चलने के लिए आप हमें सहायता मदद करना पिता।